Hey guys, welcome back to Entrance and Beyond. Today I'm bringing an AI special episode. So today I have Amit Rohilia with me. He's basically someone who has passed out from IIT Bombay recently. He did a degree in aerospace engineering and he's someone who really dived into AI. So he's done a couple of internships related to AI. So he's worked at Deutsche Bank, MobiQuick. He's done a bunch more of internships. He's currently a data scientist at OneCard in Pune and he's also an AI consultant. So today we're gonna dive into his journey and understand how one should go ahead with their AI journey and actually do something good in the industry. तो अमित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट. तो लाइक आप बताओ अपने बारे में कुछ अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स एंड ऑल ऑफ दैट कि क्या चल रहा है लाइफ में. बचपन में क्या सीन था और कैसा चल रही है लाइफ. अप्रिशिएटेड मैन अप्रिशिएटेड थैंक यू सो बचपन से अगर स्टार्ट करो तो कभी सोचा नहीं था कि आईआईटी तक जाना होगा एंड इन द कॉर्पोरेट इज लाइक बस ठीक है कॉर्पोरेट के बारे में कुछ बोल नहीं सकते सो इनिशियली आई एम फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग माय बैकग्राउंड एंड मेरे एरिया के अंदर उतना ज्यादा आईआईटी को लेके क्रेज नहीं है सो आई was born and brought up in that area and फिर उसके बाद I people prepare for IIT people prepare for JEE but they end up having a NIT or some kind of a government college instead of IITs. So in the last few years, if I recall, if my memory serves me correctly, I and a friend of mine, we were just the two IITians from my city. So that was one thing. So came to IIT Bombay, never knew anything about coding. सो अगर मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मुझे कोडिंग का क्या पता था आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम सम प्लेस बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर किसी का आईआईटी क्रैक हो जाता है तो उसको भगवान समझ लेते हैं लोग सो पीपल स्टार्ट थिंकिंग दैट अबाउट मी देन मेरी कोई रोहिला समाज की ही एक मीटिंग थी उसमें मुझे बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट सो आई वॉज कमिंग बैक सो मेरे दिमाग में सिर्फ कोडिंग इतना था कि जैसे मैं और अपार बात कर रहे हैं एंड इफ आई एम टॉकिंग टू कंप्यूटर so that was coding for me that was my intuition मुझे पता नहीं था मैंने पढ़ा नहीं था कैसे that was just a bare intuition in my mind. So that's how coding came to into my brain. Before JEE, nothing was like that. मैंने कभी JEE के लिए preparation भी नहीं किया. I just prepared for 3 months kind of that and got a good rank and got IIT Bombay ultimately. I was not really interested to be in aerospace engineering but was like both at the same time. बचपन से एक शौक था फिर उसके बाद यहाँ पे आया आईआईटी बॉम्बे के अंदर पता चला कि ऐसी चीजें करते हैं कम्युनिटीज ज्वाइन की and there was a community in IIT Bombay, developers community DevCom. I was a part of that, and that was that kind of a community. Maybe there must be some community in your college हम्म. जिसमें सब लोग को लगता होगा कि हाँ यार ये इसका पार्ट है तो बंदे में दम होगा. करेक्ट. So that kind of community, DevCom was a community in IIT Bombay. I was a part of that in the first year. I was a technical head of the aerospace engineering department also. हम्म. So that's how my journey started with coding. I started learning with web development. So मैं कभी डीएसए की तरफ भागा ही नहीं लाइफ के हम्म. अंदर. मुझे लगता था कि यार क्यों कर रहे हैं हम ये चीज पता नहीं अभी भी लगता है वो चीज आज भी लगती है मुझे यार क्यों कोई डीएसए करता है क्यों कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन बट दैट्स हाउ थिंग्स आर so initially my journey started with web development. I started with each and everything continuously coding all the time. मेरे दोस्त खेलने के लिए जा रहे हैं वो क्लब्स में जा रहे हैं वो पार्टी कर रहे हैं मैं रात को बैठ के कोडिंग कर रहा हूँ एवरी वीकेंड 2 से 3 नई वेबसाइट बनाना एवरी वीकेंड एक दो कोई ऐप बना देना अभी पड़ी होगी मैंने जेन्युइनली मैंने कभी खोला भी नहीं है अपना वर्सल करके एक प्लेटफॉर्म होता है हम्म. वेयर यू होस्ट योर वेबसाइट्स आई नेवर ओपन दैट फॉर आई बिलीव like in the last 1 or 2 years so I never opened that I should go through that so that's how it started on this side so I'll tell you how my journey of AI started so basically at our time when I was preparing when I was learning things I went into the IIT Bombay in December 2021 then I joined DevCom in March 2021 and after that I started learning about web development so continuously doing the हम्म. development if people know about in like जो भी पॉडकास्ट देखेंगे उनको पता होगा शायद अगर वेब डेवलपमेंट से React JS, Next JS, Angular JS, Node JS, everything, Merge stack development, app development, Flutter development, every kind of app development and website development. I was into that, and this was the time where ChatGPT was nowhere. या. Okay, I used to code using Stack Overflow. मुझे अगर कोई एरर आता तो मैं स्टैक ओवरफ्लो या गूगल पे जाकर देखता था
आज की डेट में सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। मुझे कोई एरर आएगा किसी कोड के अंदर, आई जस्ट कॉपी पेस्ट दैट एरर इन द चैट जीपीटी एंड चैट जीपीटी विल गिव मी अ करेक्ट आंसर। बट हमारे टाइम पे ये नहीं था। Hmm. चैट जीपीटी के आने के बाद भी ये नहीं था। वो आंसर देता था एंड द आंसर यूज्ड टू हैव whatever the pronunciation is, Yeah. hallucinations, right? So that was one thing that used to happen, and that's how my journey of AI started. मुझे लगा कि यार अब वेब डेवलपमेंट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई यूज्ड टू मेक वेबसाइट्स एंड एप्स यूजिंग वेब डेव, मतलब Hmm. यूजिंग चैट जीपीटी, एंड दैट यूज्ड टू टेक मी हाफ एन आवर, 1 आवर और 2 आवर्स टू मेक अ कंप्लीट वेबसाइट, क्योंकि मुझे मैनिपुलेशंस करना आता था, मुझे पता होता था कि कोड क्या लिखा जा रहा है। एंड आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट कि वेयर टू चीट, वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड योर क्रिएटिविटी। You can copy and paste, but you should be creative enough. You should know what is written over there. So I'll come back to this point later Hmm. on when we'll be discussing those Hmm. things. So when ChatGPT came in December 2022, I started learning about AI, ML, reinforcement learning, Markov decision process, computer vision, deep learning, machine learning. I took a lot of courses in IIT Bombay. Even my minor degree is in artificial intelligence. There's a department in IIT Bombay, IEOR. Hmm. So that's a basically AI department. So I took that. I have a minor in that. Took a lot of courses. Did a lot of courses on this side. People used to call me कि यार ये तो AI वाला बंदा है. So विंग होता है ना हॉस्टल के अंदर सबका. तो हम लोग का 6 लोगों का विंग था. तो मैं तो एआई वाला हूँ, मेरा रूममेट इलेक्ट्रिकल वाला हो गया, ये वाला बंदा प्रोपल्शन करेगा, ये वाला बंदा कंट्रोल्स करेगा रोबोट्स के अंदर। आई स्टार्टेड डेवलपिंग ड्रोन्स, आई वर्कड इन पोलैंड, आई वर्कड इन यूके, आई वर्कड इन यूएसए, आई वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया विद पीपल, आई हैव वर्कड with people in Pakistan also. So that is one thing. So that's how I started learning with the, मुझे भी इनिशियली ये लगता था जब मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में था, जब मैंने एआई के बारे में जानना शुरू किया, यार बस कोडिंग ही तो कोई नहीं है। Hmm. मैथमेटिक्स से क्या मतलब है यार? क्यों सिखा रहे हैं ये लोग लीनियर अलजेब्रा? क्यों सिखा रहे हैं ये लोग कैलकुलस? इसकी तो नीड भी कहीं पे नहीं है। क्या चल रहा है यार ये सब? व्हेन आई डाइव डीप इनटू दोज़ थिंग्स, मुझे तब समझ में आया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स इज द बेसिस ऑफ एआई। अब एआई की कोडिंग आपको समझ में आ जाएगी यार, ठीक है, आपने 4 लाइन में कोड लिख दिया, वो चल गया। उसके आपकी नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स होगी, नंबर ऑफ एपॉक्स होगी, आपकी 100 एपॉक्स में आपका मॉडल ट्रेन हो गया, आपने उस मॉडल को यूज़ कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, गुड टू गो, परफेक्ट। क्या पता है आप लोग को वो क्या चल रहा है? लेट्स टेक अ बेटर एग्जांपल, चैट जीपीटी। Hmm. Hmm. किसी को नहीं पता है चैट जीपीटी। पीपल Correct. डू नो अबाउट चैट जीपीटी, दे आर यूजिंग कंटीन्यूअसली। हाँ. किसी को Correct. फुल फॉर्म भी नहीं पता है उसके बारे में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लास्ट टाइम व्हेन आई हैड अ कन्वर्सेशन विद यू, आई आस्क्ड यू द सेम क्वेश्चन। Correct. So Apar, do you right now at the moment recall the full form of ChatGPT? Yeah. So ChatGPT is basically general purpose transformer, correct? The GPT part. Right, right. Yeah. So ultimately 99% of the people who are using ChatGPT, they don't know about the full form of Correct. ChatGPT. Correct. उनको अगर ट्रांसफॉर्मर पता भी है ना, चलो किसी ने नाम सुन भी लिया हाँ. ट्रांसफॉर्मर, वो इनर हाउ डज वर्किंग दैट नहीं वर्क? पता है, इनर वर्किंग नहीं पता किसी नहीं को. पता है। That basically works on the mathematics. हाँ. And this is a chain of thought process. अगर आपको बहुत पीछे से आना पड़ेगा, मैं अगर मुझसे a lot of people ask me कि Hmm. Amit, can you guide us with how to start with AI? I just say them, go with data analysis, then machine learning, then deep learning, then you can think about transformers and AI stuff. Hmm. This is a big way. You can't start with ठीक है मेरे को transformer पता है, I'll हाँ. start with that. It doesn't work that way. Correct. AI is a big field and it's completely evolving. You should be fair enough in your brain that you have to learn the mathematics. Hmm. आपको वो सीखनी पड़ेगी मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं सीखोगे ना, you won't go ahead in AI. आपको Correct. कैलकुलस समझ में आनी चाहिए। I completely understand कि हाँ आपको पूरा लेयरिंग भी समझ में आना चाहिए Hmm. कि किस तरीके से काम कर रही है, बट यार आप सिंगल चीज के लिए तो सीख सकते हो ना। Correct. अगर ये आपको ये करना पता है चाहिए. कि हाँ यार, हाँ, Hmm. अगर आपको ये पता है कि आपका एक चाकू किस तरीके से बन रहा है, तो you'll make 1000 knives. You should know at least the process for one. Correct. आपको एक चीज बनानी आनी चाहिए, आप 1000 बना सकते हो, उसका रेप्लिकेट कर सकते हो। Hmm. एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। आप अगर एक चीज सीखोगे तो दूसरी चीज सीखना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम द मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव। आज जाके मुझे लगता है कि यार मुझे लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट ईयर हाँ. में क्यों पढ़ाया जा रहा था?
I don't understand it now. क्यों? It was really important. उस टाइम पे लगता था कि यार ये लोग क्यों बता रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. Right now, I know that कि principal component analysis (PCA), which is one of the most important algorithm of dimensionality reduction in machine learning, that runs on orthogonality. So that's how Correct. things work. That's Hmm. how my journey have been. I never learned from. मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शंस तो थे नहीं मैं हाँ. कुछ उतना Hmm. अमीर आदमी था कि मैं जाके हर चीज का सब्सक्रिप्शन लेता भागूंगा कि AWS का सब्सक्रिप्शन ले लिया, हाँ. ये ले लिया. I started working in companies. They used to provide me the subscription. मैं Hmm. अपने छोटे-मोटे मॉडल्स चला के देखता था, छोटी-छोटी चीजें बना के देखता था कंपनीज के लैपटॉप के ऊपर. क्योंकि कोई उतना बड़ा मतलब अगर मेरे पास कोई मैं डेटा सेट अगर SQL Hmm. का कोई डेटा सेट है, उसी के थ्रू कोई मॉडल बना के देख रहा हूँ या फिर कुछ कहीं से इमेजेस लेके बना के देख रहा हूँ, तो दैट्स फेयर इनफ, दैट्स ओके. कंपनी उसमें आपको कुछ नहीं बोल रही, बस आप हाँ. कंपनी का डेटा कहीं बाहर मत भेजना. हाँ. सो दीज आर द थिंग्स दैट वर्क फॉर मी. Hmm. I started working, and the turning point of my life was I was sitting one day so frustrated, uh, took my mobile, मैंने लोग रैंडमली सर्च किया कि व्हाट्सएप ग्रुप फॉर इंटर्नशिप इन यूएसए. Hmm. आई जॉइंड सम ग्रुप, texted a same message with my resume to a number of people, हाँ. maybe 20 or 24. I don't recall the number, but 24 से ज्यादा नहीं था, उतना मुझे याद है. I got a reply from 2 to 3 people. Hey, we'll get back to you. I got a reply from one person. He was Harvard graduated MBA. He was MIT electrical graduated. He is a assistant professor in Duke University, North Carolina. He was running a startup at that time, and I started working with him, and that was the best decision of my life. जो मैंने उनसे सीखा है ना, I still respect him. His name is Felipe Infante de Castro. He's a Brazilian who lives in USA. Okay. Lovely person. I just learned from, like, I started working in USA after that. That was the turning point of my life. I learned mathematics from him कि how to study. और उससे ये सीखा कि पढ़ा कैसे जाता है. That's what I'm reading. मैं वही चीज तुमको भी बता रहा हूँ. हाँ. मैथमेटिक्स इज द बेसिस यार. कोडिंग तो कोई भी कर लेगा. Hmm. ठीक है. आई टेक एन एग्जांपल. तुमने डीप लर्निंग के कभी अगर एल्गोरिथम्स चलाए हो तो एडम डॉट ऑप्टिमाइजर एक चीज होती Hmm. है. चलाया कभी? नहीं, I have deep learning का haven't run too many Okay, I'll take algorithm. some other example. I'll take some other example. Okay, let's take an example. Let's take an example ना. अभी रिसेंटली गिबली आर्ट का एक ट्रेडिशन चालू हुआ हाँ. था. Ghibli art, correct. एवरीवन वाज यूजिंग दैट. हाँ. किसी को पता भी नहीं था कि वो कैसे काम कर रहा है. टेक वाले बंदे उसको यूज कर रहे हैं. डेटा साइंटिस्ट जो खुद को डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं वो लोग उसको यूज कर रहे हैं. यार हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ इन फर्स्ट ईयर दैट आई एम एन एआई रिसर्चर? कैसे बोल सकते हो? मैं खुद भी आज मतलब ठीक है मेरा डेजिग्नेशन में दिख देता हूँ कहीं पे एआई रिसर्चर, हाँ. बट रिसर्च इज अ वेरी बिग थिंग यार. यू कंटिन्यूअसली डू दैट. My professors are also researcher. I am also researcher. How can we both on the same page? We cannot be on the same page, right? So गिबली आर्ट का जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था लोगों को पता नहीं था, कॉन्टिन्यूअसली इसको यूज करते चले जा रहे थे. Hmm. चलो ठीक है, समझ में आता है कि देयर इज सम फैशन हाँ. स्टूडेंट हु इज यूजिंग गिबली आर्ट, वो अपना बना रहा है. चलो उसको नहीं पता है कि पीछे जीपीयूज के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है. बट यार तुम तो डेटा साइंटिस्ट हो, तुमको तो ये चीज की समझ होनी चाहिए. तुम जो ये बना रहे हो कॉन्टिन्यूअसली, Hmm. जो तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो उससे ओपन एआई की जीपीयूज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है टू कूल डाउन द जीपीयूज. यू शुड Correct. अंडरस्टैंड दैट. Hmm. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. दैट्स वेयर द बेसिक एथेनिसिटी ऑफ एआई कम्स इनटू द पिक्चर. आपको वो भी समझना चाहिए. ठीक है, समझ में आता है उस फैशन के स्टूडेंट को नहीं पता है, उसको अपनी पिक्चर्स खींचनी है, वो खींचेगी. शी विल डू दैट एंड शी हैज गॉट द राइट टू डू दैट. उसको कुछ मतलब नहीं है, शी इज पेइंग फॉर दैट. ओके, बट यू शुड अंडरस्टैंड तुम लोग कंपनीज के जीपीयू के बेसिस पे अपना गिबली आर्ट बना रहे हो. दैट डजंट मेक सेंस. सो दीज आर द पिक्चर्स जो मैंने तुमको अभी क्लियर कर दिए कि कहाँ हाँ. पे कैसे चीजें स्टार्ट हो रही हैं. Hmm. नाउ वी कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चंस. सो दैट्स Okay. हाउ माय जर्नी हैव बीन. आई Hmm. हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, मोबीक्विक, डॉइच बैंक, सिस्को, currently in OneCard, lot of startups. I'm an AI research consultant to a lot of people. I do give workshops on AI. So whoever is watching the podcast, connect me on LinkedIn, and we Hmm. can have a workshop in your college.
So Hmm. that was the basic aim of the workshops also. I started with a college in Delhi Vivekananda Institute of Professional Studies. I have done a lot of workshops even in my college. IIT Bombay invited me recently. Hmm. That's how things work. दैट्स प्रीटी कूल। तो अमित, आपने लाइक बहुत अच्छे से समराइज कर दिया कि आपका जर्नी वगैरह कैसा था। तो ऐसा कोई मोमेंट था क्या जब आपको स्ट्राइक हुआ कि लाइक मैथ्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लाइक आपने मेंशन किया कि स्टार्टिंग में एवरीवन को डाउट आता है ना, इवन व्हेन वी आर स्टडीइंग फॉर जेईई बहुत लोग को डाउट आता है, अरे मैथ्स क्यों पढ़ रहा है, इसका क्या है एप्लीकेशन वगैरह। तो आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ क्या, लाइक कोई इंटरव्यू में हुआ हो, या तो कभी कभी तो एक्सपीरियंस आया होगा ना कि लाइक अब समझ में आया होगा कि अरे मैं तो टोटली लाइक आई वाज इन अ डिफरेंट लीग, बट टू हैव द मेटल मेरे को मतलब अपस्किल करके मैथ्स में तो डीप डाइव करना ही पड़ेगा, ताकि लाइक आई कैन एक्चुअली बी द बेस्ट इन माय फील्ड। तो ऐसा कब हुआ Right. था, अगर हुआ होगा कभी कुछ तो? So there are two instances जो मेरी लाइफ में इसके corresponding हुए. First was when I was working with this guy Philippe. I just told you about him. हम्म। He was the founder of a startup Followfox.ai. हाँ। एंड Followfox.ai क्या करता था ना, मैं बताता हूँ. 2022 में जब चैट जीपीटी नया नया आया दिसंबर 2022 में, तो वो बस चैट टू चैट करता, तुम उससे चैट करेक्ट। करो तुमको आंसर हाँ दे देगा. हाँ। बट उस टाइम पे द थिंग्स वर इन डेवलपमेंट कि हाँ आप किस तरीके से ये कर सकते हो कि आपने एआई को उठाया, हम्म। ठीक है, और आपने अपना प्रॉम्प्ट दिया और आपको उससे इमेज मिल गई. आज की डेट हम्म। में चीज बहुत आसान है, आज जेमिनाई की पे डेट, जाओ हाँ हम बहुत करेक्ट। सारी इमेजेस बना करेक्ट। सकते हैं. करेक्ट। बट उस टाइम पे चीज चल रही थी. हाँ। And there's a lab from German lab, I believe, हम्म। stability.ai, and they have created a model called stable diffusion. हाँ। So I started using that stable diffusion at that time हम्म। with Philip. Philip used to explain me कि हमें ये इस तरीके से वर्क कर रहा है. मुझे नहीं समझ में आता था. उसके पीछे वजह पता है क्या थी? क्योंकि स्टेबल डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर से काम करता था. हम्म। मतलब देयर इज अ डिफरेंट मैथमेटिक्स फॉर हाँ स्टेबल हाँ। डिफ्यूजन. not exactly transformer, I would say that UMAP is a thing जो कि आपका CNN वगैरह के साथ आप कभी अगर पढ़ोगे तो UMAP was one thing. देन उसके बाद वो आपका किस तरीके से आपको मॉडल को एनकोड करना है, किस तरीके से वो डिकोड होगा, क्या आपका लेटेंट, ये सब चीजें मुझे नहीं पता था. हम्म। उसके बाद जब मैंने बैक प्रोपेगेट करना स्टार्ट किया, जब मुझे समझ में आया कि यार ये क्या चल रहा है, तो कुछ भी नहीं है. बट ऑन द पैरेलल साइड आई वाज हैविंग माय कोर्सेज हम्म। जो कि मैथमेटिक्स सिखाते थे, तो मुझे करेक्ट। उतना ट्रांसलेट करने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा, लीनियर हम्म। अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा, बट साइड बाय साइड आई वाज हैविंग मशीन लर्निंग का कोर्स, डीप लर्निंग का कोर्स, कंप्यूटर विजन का कोर्स. सेम मैथमेटिक्स जो लीनियर अलजेब्रा में पढ़ रहा था, मुझे यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिलता चला गया. हाँ। रात को बैठ के मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, क्लास में आके ये पढ़ लिया. सो मेरे हम्म। केस में दैट बेनिफिटेड मी. सो फिलिप वाज वन रीजन जिनकी वजह से मैंने सीखना स्टार्ट किया. स्टेबल डिफ्यूजन, आई हैव माय ब्लॉग ऑन स्टेबल डिफ्यूजन. आई राइट ब्लॉग्स हम्म। आल्सो. हाँ, यू कैन कैन चेक शेयर इट, माय ब्लॉगर आल्सो. I'll share your blog in the description. Check that out. Yeah. So blogs also. So I have a blog on stable diffusion. So ultimately, if I write something, I have to think about it कि मैं किसी को गलत knowledge नहीं दे रहा हूँ, because I हाँ। have seen this. करेक्ट। I'll come to that. I have seen this in my life. To be very honest with you, मैंने देखा है कंपनीज के, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज को गलत नॉलेज डिलीवर करते हुए मैंने देखा है, और अपनी आंखों के सामने मैंने उनको टोका है, और उन्होंने मुझे बोला है कि नहीं यार हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे. एंड आई हैव सीन दिस. सो ये होता है. हाँ, सो व्हेन आई राइट ब्लॉग, सो मैंने स्टेबल डिफ्यूजन के ऊपर मेरा ब्लॉग है. सो स्टेबल डिफ्यूजन बेसिकली अगर मैं तुमको समझाऊं तो वो इस तरीके से है कि आपके पास कोई भी आप प्रॉम्प्ट दोगे और आपको इमेज मिल जाए. सो देयर हाँ। शुड बी अ वर्किंग बिहाइंड दैट. हम्म। सो दैट्स हाउ स्टेबल डिफ्यूजन basically works. So there's a complete mathematics behind it. There's a complete mathematics behind it. Again, that works on the transformer. So that is one thing. So I was, हाँ, हाँ। अभी मेरा रिसेंटली कंपनी के अंदर इंटरव्यू था, around 3 months back, and the guy asked me कि hey Amit, क्या है? How are you doing? I'm doing good. Do you know about transformers? He started like this. हम्म। You know transformers? Yes, I know about transformers. Do you know about positional encoding? Yes, I know about positional encoding. Write the formula for positional encoding. He grinded me for 1 hour 45 minutes precisely around the mathematics. और उस दिन मुझे समझ में आया कि तू कुछ नहीं है. हम्म। अभी भी ये लगता है और अभी भी मैं कुछ नहीं हूँ. हम्म। There's a lot to learn, and there's a quote apart. हम्म। There is no end to depth. डेप्थ का कोई अंत नहीं है.
जितना करेक्ट, सीखोगे उतना कम। करेक्ट। जितना सीखोगे जितना घुसोगे चीजों के अंदर उतना ज्यादा जानने को मिल जाए। वो सो इम्पोर्टेंट भी गोइंग है टू द ना अमित। डेप्थ। आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज लोगों के पास ईगो आ जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे फिर लगेगा वी आर द स्मार्टेस्ट, बट लाइक यू मेंशन अब अभी भी सीख रहे हो, तो दैट इज समथिंग रियली You इंपॉर्टेंट कि have to लाइक learn all the सबको time. सीखना ही I have पड़ेगा ना। seen इट्स नॉट people जस्ट लाइक calling कि themselves as data scientist. उन्होंने CNN क्या पढ़ लिया यार? उन्होंने हाँ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या पढ़ लिया? खुद को बोलते हैं वी आर अ डीप लर्निंग इंजीनियर। नहीं यार, यू डोंट नो एनीथिंग। तुमने LLM टर्म क्या पढ़ लिया? LLM का मतलब हम्म, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। आई एम अ LLM इंजीनियर। नहीं यार, देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर पोजिशनल एनकोडिंग का फॉर्मूला मैं लिखवा लूंगा ना नहीं होगा। मतलब ठीक है, मेरा वो इंटरव्यू 1.5 घंटे तक चला क्योंकि मुझे वो सब चीजें पता थी, बट हाँ, स्टिल मुझे औकात समझ में आई मेरी, हाँ, एंड मैं उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाया हाँ, 1.5 घंटे तक चलने के बावजूद भी, because the guy was too good. He was PhD in AI ML from IIT Delhi. He was All India rank 35 in JEE Advanced at his time. He was IIT Delhi AI ML and CSC gold medalist in MTech. So he was a brilliant person. मुझे उस दिन समझ में आया कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं खुद को सोचता हूँ कि कुछ हूँ, पर नहीं है। So detox your ego. People are far better than you. ठीक दैट है? इज And they ऑलवेज are ट्रू। learning. You have to learn. करेक्ट। Yeah. तो अमित, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट लाइक हाउ शुड वी लर्न अबाउट एआई। जैसे आपने बोला कि थियरी भी है, बट आई थिंक प्रैक्टिकल भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि लाइक आई शुड बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर कोई समवन न्यू टू दिस, सपोज उन लोग ने थियरी वगैरह थोड़ा बहुत दे डाइव डीप इनटू इट, तो लाइक हाउ डू यू थिंक दे शुड बैलेंस बिटवीन प्रोजेक्ट्स एंड थियरी, एंड लाइक क्या सीन होना चाहिए अगर किसी को सीखना है, सपोज लाइक आपने जैसे मेंशन किया दे विल गो डीप इनटू थियरी एंड ऑल ऑफ दैट, बट अगर कोई स्टूडेंट है उसको और लाइक उसको यही फील्ड में जाना है, उसको लाइक इंटरेस्ट आ रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम थियरी आपको क्या लगता है कि हाउ शुड दे मे बी बिल्ड प्रोजेक्ट्स, एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ शुड दे स्टे अपडेटेड, बिकॉज आजकल तो ऐसा सीन हो रखा है कि डेली 10 मिनट में देर दिस लाइक लिटरली इन 1 or 2 hours कुछ नया न्यूज आ जाता है, एंड देन आधे लोग वो पढ़ने लगते हैं, एंड देन देर लाइक कि नहीं अभी ये हो गया, तो देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, एंड बहुत बार आई थिंक लो पीपल डिविएट फ्रॉम द फंडामेंटल्स। अब जैसे ही कुछ नया आने लगता है दे डोंट फोकस ऑन द फंडामेंटल, दे लाइक कि चलो हम लोग इसको अडाप्ट करके लाइक लेट्स यूज इट। तो लाइक व्हाट शुड द बैलेंस बी एंड हाउ टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स? I get your point. So let's put it that way. हम्म, An average person can read 20 pages in an hour. हम्म, An average person who is speaking in a YouTube video is explaining around 7 to 8 pages per hour. So what would you prefer? Obviously, यार तुम 20 पेज पढ़ना चाहोगे ना? हम्म, एक बहुत मैं नॉर्मलाइज एग्जांपल हाँ, लेता हूँ इसका कि तुमने खुद से जाके कोई बुक पढ़ी 20 पेज, कंसिडरिंग एज एन एवरेज पर्सन तुमने हम्म, 20 पेज की बुक पढ़ी, हम्म, तुमको कुछ नॉलेज मिली, तुमको सिर्फ करेक्ट, 60 या 70% नॉलेज मिली। हाँ, तुमने सेम एक यूट्यूब वीडियो देखी जिसमें 3 घंटे में उसने सेम चीज एक्सप्लेन की है। अब उस बंदे को उसकी 80% नॉलेज होगी, हम्म, वो 50% डिलीवर कर पा रहा होगा, 30% तुम कैप्चर कर पा रहे हो, फिर हम्म, उससे अच्छा जाके बुक पढ़ लो ना। अवॉइड यूट्यूब वीडियोस इनिशियल फेजेस में, दे आर गुड। कोडविद हैरी इज अ पर्सन, इज अ ब्रिलियंट गाय। आई ट्रीट हम्म, हिम एज अ पर्सन जिसकी वजह से मैंने सीखना चालू किया। इज अ ब्रिलियंट गाय, आई रेस्पेक्ट हिम लॉट। देयर आर अदर यूट्यूब वीडियोस आल्सो, हाँ, you'll find, तुम एक ढूंढने जाओगे तुमको 50 मिल बहुत जाएंगे। 50 मिलेंगे। बट यूट्यूब वीडियोस शुड बी योर इनिशियल जर्नी। जब आप नया-नया सीख रहे हो, हम्म, then you should switch to books. You should switch to blogs. Read blogs. People write immensely good. I write good. I myself write good. People write good. बहुत अच्छे से लिखते हैं. Go to ChatGPT. Read about it. Read about things. उसको जाके बोलो यार मैं ChatGPT को इस तरीके से यूज करता हूँ, मेरा दोस्त बैठा है सामने जिसको मुझसे ज्यादा हाँ, नॉलेज है। करेक्ट, उसको आगे मैं बोलूंगा यार मैंने नहीं करके दे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैंने यार उसको ने ये बता दिया था, तो क्या मैं गलत था? वो बोलेगा यार तू पूरा गलत नहीं था, बट तू ये अच्छे से बता सकता था। हाँ, लर्न फ्रॉम चैट जीपीटी। खुद का आपको इंटरव्यू देना है, अगर मेरे को अगर किसी बंदे को इंटरव्यू देना है, मैं उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल उठा के चैट जीपीटी को डाल दूंगा कि सुन हम्म, मेरा ना बहुत अच्छे से मेरे को ग्राइंड कर, मेरा दिमाग खराब कर दे, इतना खतरनाक वाला इंटरव्यू है मेरा, टेक अ डेंजरस इंटरव्यू ऑफ माइंड एंड यू आर दिस पर्सन, हम्म, इट विल टेक। Okay, now coming back to the picture, how should one start and what should be the trade-off? So we have two questions.
One, Hmm. how should one start? Second, what should be the trade-off? Okay. Starting point of anything is mathematics. Hmm. हमारे आईआईटी बॉम्बे के अंदर और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर तो ये पढ़ाया जाता है, Correct. डेटा एनालिसिस एंड Hmm. इंटरप्रिटेशन. फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट ईयर के अंदर ही सबको पढ़ाया जाता है. हाँ. लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट ईयर के अंदर सबको Hmm. पढ़ाया जाता है. दैट्स द बेसिक मैथमेटिक्स. Hmm. सो स्टार्ट विद लीनियर अलजेब्रा, देन गो टू डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. यूज चैटजीपीटी, सब सिखा देगा वो. पता है क्या करो, एक बुक लो जो लीनियर अलजेब्रा की बुक है, Hmm. उसके कंटेंट पेज को देखो, टॉपिक्स को उठाओ, चैटजीपीटी को बोलो समझाता चल, और एग्जांपल्स के बेसिस पे समझाता है. वो इस तरीके से समझा, मैं फर्स्ट ईयर का बच्चा हूँ. यू गेटिंग मी Hmm. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Hmm. ऐसे समझा कि मैं फर्स्ट ईयर का बच्चा हूँ. देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वैसे सीखो. मशीन लर्निंग, these are the steps I'm telling you. हाँ. If you are a start, if you are a beginner, linear algebra, data analysis and interpretation, machine learning, all the algorithms and basics, Hmm. deep learning, and actually I'll share a link with you apart, हाँ. and we can attach that in the that is a Description. Venn diagram that I created at one time. एक वेन Hmm. डायग्राम है जो मैंने एक टाइम पे बनाया था. उसमें ये है कि क्या किस तरीके से चीजें हैं, क्या किसका सबसेट है. Hmm. Then machine learning, like linear algebra, data analysis and interpretation, machine learning, deep learning. Then you can go to either LLMs, either reinforcement learning, either computer vision, either natural language processing, or you can go to natural language processing, then transformers, then LLMs, then Hmm. agentic AI, then image transformers. There's a lot Hmm. to learn. It will never end. एंड तो देन जब तब तक तक तुम कोई ये नया सब भी आ सीखोगे ना, जाएगा. तब तक कुछ नया भी आ जाएगा. exactly, जब तक आप exactly. सीख रहे हैं. Right? So this was the first point. हाँ. Now the second, learn about each and everything. Mathematics सीखो, इसकी हर चीज करो. और तुमको एक बात बताऊं मैं. Hmm. Point is कि जब तुम सीख रहे होगे ना, let's talk about algorithm. Linear regression is the basic algorithm of machine learning. Everyone Hmm. knows about that. Hmm. So उसको बात करते हैं. जब तुम उसके बारे में सीख रहे हो ना, तो उसकी मैथमेटिक्स पढ़ो. Hmm. तो साथ के साथ जाकर उसको ना चैट जीपीटी से कोड लिखवा के सीख लो. उसकी ना कोडिंग सीख लो. Hmm. तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है. Hmm. These are the pictures. These are the scenarios. Okay. Now the second point कि कहाँ पे ट्रेड ऑफ आना चाहिए. हाँ. ट्रेड ऑफ सिर्फ इतनी जगह आना चाहिए कि जो तुम लिख रहे हो ना Hmm. कोडिंग के अंदर, कोड के अंदर, तुमको पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है. ये ना हो कि तुमने लिख दिया और तुमको पता ही नहीं कि पता वो ही क्या कर नहीं रहा है. है. क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं बात करता हूँ, सो अगर लीनियर रिग्रेशन की एप्लीकेशन की बात Hmm. करता हूँ, सो होगा क्या, फ्रॉम sklearn डॉट import linear regression, Hmm. model equal to model dot fit linear regression, or Hmm. linear regression dot fit something like हाँ. that. यूज द मॉडल. द मॉडल इज बीइंग ट्रेन्ड. कैसे काम कर रहा है किसी को नहीं पता है. क्या ये लाइन जा रही है किस तरीके से प्लेन के अंदर, यहाँ पे पॉइंट है, स्क्वायर्ड सम एरर क्या होता है, उसके हाँ. बाद उसका कैसे आर आर स्क्वायर वैल्यूज निकलती है, क्या एसएससी होता है, क्या एसएसटी होता है. नो वन नोज Hmm. दैट. बीटा नोट क्या होगा, बीटा वन क्या होगा, एमएक्स प्लस सी किस तरीके से वो लाइन जाने वाली. मैं रोज रोज पढ़ नहीं रहा हूँ, बस मुझे याद हो गया है पढ़ते पढ़ते. हाँ. ये सब पढ़ते पढ़ते याद हो कॉन्सेप्ट. जाता है. याद मत करो, कुछ याद मत करो. जो समझ नहीं आ रहा है, गो टू चैट जीपीटी यार. गो टू एक्स. एक्स पे बहुत सारे डिस्कशन. हाँ. रेडिट पे अपना प्लेटफॉर्म बनाओ. जेमिनाई यूज करो, क्लाउड यूज करो. कीमी 1.5 इज अ टूल. हाँ. मूनशॉट का कीमी 1.5 इज अ चाइनीज टूल. डीपसीक इज अ ब्रिलियंट वन यार. हाँ. यूज दोस टूल्स. यूज कंटिन्यूअसली, लर्न फ्रॉम दैट. छोटी से छोटी चीज हो रही है. अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे शेजवान चटनी, Hmm. किस तरीके से इसके काम हो रहे हैं, क्या लर्न फ्रॉम यार. तुमको फर्क क्या पड़ रहा है छोटी से छोटी चीज सीखने में. तुम्हारा कहीं पे ज्ञान वेस्ट तो नहीं जाएगा, सीख ही रहे हो. छोटी Hmm. से छोटी चीज सीखो. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन इंस्टाग्राम, क्या अपना जाके चैट जीपीटी के साथ मस्ती कर लो थोड़ी बहुत, वो तुमको कुछ सिखा ही देगा. Hmm. अगर तुम जाके उसको बोल रहे हो कि हाँ यार एक बिल्ली की इमेज दे दे, तो उससे ये भी पूछ ले कि बिल्ली की इमेज तूने जनरेट कैसे की, क्या इसके Hmm. पीछे मैथमेटिक्स चल रही है, क्या किस क्या क्या एल्गोरिथम यूज हुई है. सो दीज आर द थिंग्स. सो दैट शुड बी द ट्रेड ऑफ. यू शुड नो व्हाट यू आर राइट. दैट्स. Okay. So basically अगर if I'll try to summarize what Amit just mentioned कि like डीप डाइव करो, मतलब नॉलेज तो काम आएगी. बहुत लोग को लगता है कि यार हम लोग क्यों इतना पढ़े, कुछ काम आया नहीं, सपोज किसी का काम इंटर्नशिप आएगा. नहीं लगा. अरे बट दे हैव दैट मेंटालिटी ना कि नहीं लगा, मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ. बट लाइक अमित मेंशन हो, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही. जैसे अमित को लाइक इट्स ऑन द टिप ऑफ हिज टंग, उसको पता है कि क्या इनर डिटेलिंग, क्योंकि उसने राइट. उतना डिटेल में पढ़ा होगा ना. अगर आपने बस इंटरव्यू के लिए राइट. पढ़ लिया थोड़ा बहुत, एक डीप क्वेश्चन आएगा आपको, फिर कुछ पता नहीं रहेगा.
तो फिर दैट इज कुछ नहीं व्हाई पता रहता है। हाँ इम्पोर्टेंट टू लर्न इन डेप्थ। आपके सामने अगर खतरनाक कोई बंदा आ गया इंटरव्यू के अंदर, यू आर डन। मैं खुद को 30 मार खा समझता था उस इंटरव्यू से पहले, जब से वो मतलब दैट पीएचडी गाय केम टू द पिक्चर, मैं तो 30 मार खा समझता था। उस दिन क्या मेरे को एहसास हुआ कि भाई तो कुछ नहीं है, यू आर नथिंग, लुक एट हिम व्हाट ही इज डूइंग। Now, Amit, there was recently a boom with DeepSeek. There was this new model from China that everyone was using. Suddenly, everyone shifted from ChatGPT to DeepSeek. But nowadays, it's not that prevalent. I think I personally don't use it. Nowadays, there's a lot more players. So, personally, talking about myself, I use ChatGPT. And then apart from that, Perplexity, and then Gemini is also giving that free 1 year subscription. So, there are like so many things. So, what happened with DeepSeek, and like what is the lesson maybe you could learn from that entire thing, and what do you use personally? Okay, so I'll ask you one thing, very simple thing. You can trust me, okay, but will you trust China? I don't think so, or most people wouldn't at least. This is your answer. Okay, so this was the answer to your question. Keyword DeepSeek went back. So हुआ क्या initially? Foundational models. Okay, foundational models is like a secret recipe. हर एक Hmm. दुकान की अपनी secret recipe होती है. Hmm. So foundational models are like that. अब ठीक है, मतलब तुमने अगर ये मीम्स भी देखे होंगे इस टाइम पे कि भाई लोग बोल रहे हैं डीपसीक, ओपन एआई बोल रहा है कि डीपसीक ने मेरा डेटा चुरा लिया, ये हो गया वो हो गया। हाँ इंडिया बोल रहा है यार तुमने हमसे चुराया था, ये तो चोर के घर से चोरी हो गई। वो तो हमेशा चलता रहेगा, राइट? नाउ द पिक्चर कम्स लाइक द पिक्चर इज लाइक दैट डीपसीक हैज अ फाउंडेशनल मॉडल। उन्होंने अपना फाउंडेशनल मॉडल बनाया। ओपन एआई ने अपना फाउंडेशनल मॉडल पहले से ही बनाया हुआ था। गूगल को हाँ। उतनी, गूगल इतना पावरफुल है, वो अपना बना सकता है। मेटा इज पावरफुल, उसने बना लिया। Hmm. चाइना से उठ के डीपसीक आता है, और डीपसीक इतना ब्रिलियंट मॉडल था, इफ आई रिकॉल द नंबर्स करेक्टली, वो 670 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन था। Hmm. 671 बिलियन। एंड अब ऐसा नहीं है कि ठीक है, अपाया ने आके उससे पूछा कि यार मुझे ना मुझे मोबाइल के बारे में बताओ। अपाया ने Hmm. मोबाइल के बारे में आके पूछा। अब ऐसा नहीं करेगा डीपसीक की वो पूरा का पूरा दुनिया के बारे में देखेगा कि हाँ यार यहाँ पे गेहूं की खेती होती है, यहाँ से डीपसीक क्या करेगा, वो टेक्नोलॉजी के अंदर घुसेगा। Hmm. टेक्नोलॉजी के अंदर घुसने के बाद ये करेगा, वो करेगा। दैट्स हाउ पैरेलल ट्रेनिंग वर्कड फॉर डीपसीक। सो डीपसीक एक एक बार में 37 बिलियन पैरामीटर्स लेता था, जो भी सबसे ज्यादा रेलेवेंट होते थे कोरस्पॉन्डिंग टू द Question. प्रॉम्प्ट। Hmm. दैट्स अ हाँ ट्रांसफॉर्मर है, तो prompt. ट्रांसफॉर्मर ही। हाँ अगर कोई कॉपीराइट लेना चाहेगा ना दुनिया के अंदर, एक्चुअली कॉपीराइट है भी, गूगल का कॉपीराइट है ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज 2017 के अंदर जो Hmm. पेपर आया था गूगल का, अटेंशन इज ऑल वी नीड, सो दैट्स Yeah. हाउ ट्रांसफॉर्मर स्टार्टेड वर्किंग। बट ठीक है, उसके बेसिस से फाउंडेशनल मॉडल ओपन एआई ने अपना बनाया, उसका अच्छा चल रहा है। Hmm. पर्सनली आई यूज ChatGPT, Kimi 1.5, Gemini. ChatGPT for any kind of conversation, DeepSeek for any kind of latex or coding, images, Gemini, Leonardo.ai images, VO3 for videos, Gamma for making presentations. It's good. And I'm not a very big fan of using different tools. I Hmm. will use ChatGPT and other tools, get the information from them, go to the traditional methods and make things on my Hmm. own. जितना कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, मैं उतना जीत सकता हूँ चीजों को। एंड वी हैव टू एडिट ऑल द टाइम, कभी भी Hmm. डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो। सो दीज आर द रूल्स। अब बात करते हैं डीपसीक और चैटजीपीटी की जो लड़ाई हुई थी, वो हाँ। जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था यूएस में। Hmm. डीपसीक ने ये बोल दिया कि हम लोग ओपन सोर्स है, Hmm. ठीक है। सो देयर इज टू थिंग, ओपन सोर्स एंड ओपन वेट, ठीक है। हाउ डज दैट वर्क? डीपसीक इज ओपन वेट, लेकिन उसने क्या पॉपअप कर दिया कि हम लोग ओपन सोर्स है। गूगल पे Hmm. सर्च करो, या लोगों ने अफवाहें फैला दी कि वो ओपन सोर्स है। डीपसीक वाज ओपन वेट। सो दिस इज डिफरेंट बिहाइंड दैट। जब हम पहले पढ़ते थे ना 11वीं 12वीं के अंदर, या फिर Hmm. बिफोर दैट, सो हमारे पास बुक होती थी हमारी। सो दो टाइप की बुक होती थी। एक टाइप की बुक क्वेश्चंस, उसमें फिर लास्ट में आंसर की होती थी, इसका Hmm. आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका हाँ आंसर सी है।
करना खुद आपको सॉल्व आप खुद करते थे। दूसरे टाइप की बुक ऐसी आती थी कि एक बुक है, यहाँ पे क्वेश्चंस है, लास्ट में उसके सॉल्यूशंस है, नॉट आंसर कीज, सॉल्यूशंस, करेक्ट। यू गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ। ये है डिफरेंस ओपन मेट और ओपन सोर्स के अंदर। ओपन सोर्स इज लाइक अ सॉल्यूशन बुक, ओपन मेट इज लाइक अ आंसर की। आंसर की बुक। डीप सीक ने अपने ओपन वेट्स खोले, उन्होंने ओपन सोर्स नहीं किया। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए, लोगों को लगा कि यार डीप सीक ओपन सोर्स, अब हम भी बनाएंगे फाउंडेशनल मॉडल। इंडिया का हर बच्चा कह रहा है फाउंडेशनल मॉडल बनाऊंगा मैं, छोटे मोटे जो खुद को डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। आई डोंट, यार मैं खुद किसी को कमेंट नहीं कर रहा, इवन आई एम नॉट अ डेटा साइंटिस्ट, मैं भी कुछ नहीं हूँ, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को है दुनिया के अंदर, सीखते चले जाओ बस। दे स्टार्टेड थिंकिंग हम तो बना सकते हैं। फिर जब उनको रियलिटी चेक आया कि नहीं यार ये तो ओपन वेट है, कुछ दिनों के बाद लोगों को जैसे ओपन वेट का रियलिटी चेक आया, पीपल वाज लाइक नहीं यार डीपसीक इज लाइक अदर एआई टूल्स ओनली। बाकी इन द मीन टाइम ओपन एआई का मिनी वर्जन आ गया, ठीक है, 4.1 मिनी आना स्टार्ट हो गया, 4 मिनी आना स्टार्ट हो गया, क्लोड आ गया कहीं से, क्लोड एंथ्रोपिक का है, एंथ्रोपिक का। ब्रिलियंट टूल, ब्रिलियंट टूल। हाँ, वेबसाइट बनाने के लिए अगर आपको किसी को वेबसाइट बनानी है ना, लवेबल इज अ गुड टूल। हाँ, Lovable is also good. लवेबल है, Lovable I इट्स think got इट्स अ गुड वन। purchased recently, no? No, not Lovable. I think Windsurf. Windsurf got acquired, I think. That is आई another. एम नॉट, I'm not मैंने sure as उतना well. चेक नहीं किया। But I think the other tools are like I've tried personally Bolt and then Windsurf and then Cursor तो है ही. Bolt is good, हाँ, Bolt Bolt is is good, also good. lovable is good. But ये जो Windsurf, it's I don't find it I good. haven't used I it don't too really much find it. to be honest. I haven't also used it. I don't find it good. But हाँ, we are on हाँ something else. So ultimately, हाँ. DeepSeek and ChatGPT की वॉर यहाँ पे खत्म होती दिखाएगी, क्योंकि क्लॉड भी आ रहा है साइड बाय साइड। हाँ. DeepSeek आया रास्ते में, लेकिन लोगों को लगा कि यार इसने झूठ बोल दिया। चाइना की गंदी आदत है यार, ओपन सोर्स और ओपन वेट, वहां पे उसने कंफ्यूज कर दिया लोगों को। तो 7 दिन तक तो स्टॉक मार्केट क्रैश रहा, हाँ. फिर से उसका सिलिकॉन वैली का स्टॉक मार्केट ऊपर आ गया वापस से। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग के पास, मेरे पास अगर आलू है ना, मैं ये तो चाहूंगा कि मैं आलू किसी और को जाके दे दूं और मुझे उसकी टिक्की बना के बर्गर लाके दे दे, मैं बर्गर खा लूंगा और फिर मैं उसको देख के बर्गर बनाना सीख भी लूंगा। लेकिन हमारे पास आलू है, वो उसकी रेसिपी ट्राई नहीं करना चाहते कि कुछ अलग बना के देखें, कुछ बन जाए उससे। हम ट्राई करने वाले नहीं है, वी आर नॉट इनोवेटर्स, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। यू हैव बीन इन यूएसए, यू हैव सीन दिस, उधर के लोग इनोवेटर्स हैं, उनको चीजों की, रिसोर्सेज की कमी है। हमारे पास रिसोर्सेज है, डेटा है, हमारा ही तो डेटा लेके ओपन एआई ने वो सब बना लिया। कहाँ पे है ओपन एआई? हम लोग कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि ठीक है यार ओपन एआई, तुम ना हमको अपनी एपीआई दे दो, हम अपने मॉडल्स बना लेंगे। हर कंपनी ओपन एआई की एपीआई यूज कर रही है किसी ना किसी छोटी चीज में, राइट? सो दैट्स हाउ चैटजीपीटी एंड डीपसीक बोथ केम टू एन एंड। आज की डेट में डीपसीक इज अनदर मॉडल, इट्स गुड फॉर समथिंग, क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स है वो उस हाँ. तरीके से लर्न करते हैं। चेन ऑफ थॉट, डीप सी सर्च, जेमिनाई का सर्च आ चुका है, जेमिनाई का जो अपना एडवांस वर्जन उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का फ्री फ्री की है. सब्सक्रिप्शन खोल दिया, दैट्स ब्रिलियंट। परप्लेक्सिटी का भी वही है, आई दे थिंक. लाइक वी शुड They गो have टू made दैट, it free. वी शुड गो टू गूगल फॉर दिस। सो दिस इज अमेजिंग एंड these are the things ultimately. So that's why DeepSeek came and DeepSeek went off. Again, Okay. there is a tool Kimi 1.5 from Moonshot in China. It's a brilliant tool क्योंकि उसके पीछे ना, उसके अंदर आप 1 million tokens यूज कर सकते हो। So 1 million token is a big number. And people should also learn about BERT. जो छोटे मोटे मॉडल्स पहले थे ना, But कि BERT is a transformer, कोड में भी bidirectional रहता है ना, you encoder. can just directly use the transformer method and then you can like label in code. You can connect the label Right, for basic tasks. right. So people should learn all those things. T5, text to text transformer. हाँ. So टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मर है क्या, मुझे भी यार फुल फॉर्म तो याद नहीं रहती ना, मैं कौन सा याद करके घूम रहा हूँ, बस मुझे पता है किस तरीके से उनकी वर्किंग पता है। आई नो द वर्किंग ऑफ थिंग्स, जो वर्किंग पता है, मुझे नाम बोलोगे नहीं पता होगा शायद। दिस शुड बी योर पोजीशन, इसमें मजा आता है जब आपको वर्किंग पता हो ना, आपको पता हो कि यार ये मैं काम कर दूंगा, मुझे नाम नहीं पता है इसका, मुझे गाड़ी से मतलब नहीं है, मैं चला जरूर दूंगा इसको, लाइक शेक्सपियर वाला. उधर मजा आना स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज ओरा। ठीक है, जहाँ पे ये बोलना स्टार्ट कर देना कि यार किसी के बीच में मैं खेल लूंगा, मुझे खेलना आता है, आई डोंट केयर अबाउट द पिच, दैट्स व्हाट द पिच, लाइक
That's Hmm. something else. That's like the Virat Kohli Yeah, mentality. so फिर this वो is तो the हो picture गया जो deep sea को like yeah, Virat that's Kohli का. He amazing. can play I'm a on any Virat pitch. Kohli fan, yeah. Pitch doesn't matter. I'm a Virat Kohli fan. I'm a Virat Kohli fan. I have been a AB de Villiers fan. I'm a Lionel Messi fan. I'm not a very big fan of Cristiano Ronaldo. I appreciate his hard work, but I'm a Virat Kohli fan. हाँ I'm a RCBian, yaar. हाँ, happy year for you guys. So now let's talk about if you want to build projects in AI. So you mentioned some of the AI tools already. Lovable है, Bolt है, website वगैरह बनाने के लिए, and then there's other tools you also already mentioned. So like I just wanted you to maybe explain how can one learn to build with AI, and then how can we use the new automation tools that are out there, N8N, and many more tools that can be used to create automations. So like according to you, अगर कोई student है, मान लीजिए उसका theory वगैरह भी already covered how to dive into that, बट अभी इसको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एंड दे वांट टू बिल्ड सम यूनिक प्रोजेक्ट्स. बहुत बार तो वही प्रॉब्लम रहती है कि वही घिसे पिटे प्रोजेक्ट जैसे वेब डेवलपमेंट में अमेजोन क्लोन हो गया, एंड देन लीनियर रिग्रेशन में स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन या तो कोई भी हाउस प्रेडिक्शन, वैसे टाइप के प्रोजेक्ट से. तो अगर किसी को ऊपर आना है और एआई में कुछ बनाना है, तो व्हाट शुड दे स्टडी एंड हाउ शुड दे स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. ऑन ऑटोमेशन के बारे में भी आप बता दो थोड़ा बहुत, द टूल्स यू कैन यूज. Okay, so uh, let's consider a picture. LLM used to generate text or images. आज के दिन में ठीक images generate कर रहे हैं, but initially LLM का जो basic purpose है वो text को generate कर रहा है. LangChain is a term. मेरा blog है उसके ऊपर भी मैंने ये शेयर तो लोगों को मिलता है. I'll share that in LangChain is a term. LangChain is a term. RAG is a term. So होता क्या था, लोगों को लगता था यार टेक्स्ट टू टेक्स्ट तो मिल ही जाएगा ना, एक काम करते हैं पीडीएफ जाके अपलोड करते हैं. कुछ ऐसा हो पीडीएफ अपलोड किया और मेरे को फिर आंसर्स में उससे पूछ पाऊं. दैट वाज LangChain. RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. क्या किया उसने, पीडीएफ से पूरी इंफॉर्मेशन उठाई. पीडीएफ से पूरी इंफॉर्मेशन उठाने के बाद उसने जितना भी उसने टेक्स्ट रिट्रीव किया उसको एलएलएम के अंदर डाला, आंसर्स मिलने चालू हो गए. दैट्स हाउ LangChain स्टार्टेड. और लोगों को एहसास हुआ कि यार चलो ठीक है LangChain तो अच्छे से चल रही है. इवन आई गॉट वन पेटेंट ऑफ माइन ऑन दिस. आई राइट, सो आई हैव बुक्स, आई हैव पेटेंट ऑन पेटेंट्स. सो दैट्स हाउ पिक्चर केम, लाइक दैट्स हाउ द सिनेरियो बिकेम इन दिस साइड कि हाँ ठीक है LangChain आ गया, अब हम और क्या कर सकते हैं. अगर ये हो सकता है पीडीएफ डाल के सारी इन्फॉर्मेशन, फिर वेबसाइट डाल के भी सारी इन्फॉर्मेशन, क्या हम इन सबको कनेक्ट कर सकते हैं. ये सब लोगों के दिमाग में आना स्टार्ट. लोगों ने फ्लो बनाना स्टार्ट किया. यार एक्सेल को तो कनेक्ट कर ही सकते हैं ना फटाफट चैट जीपीटी से. N8N का सबसे बेसिक अगर कोई भी प्रोजेक्ट कोई करेगा तो एक्सेल वगैरह या फिर वर्ड वगैरह को कनेक्ट कर लो चैट जीपीटी या ऐसे टूल्स के साथ. दैट्स द फ्लो फॉर N8N. N8N इज सिंपली अ वर्क फ्लो. वो कोई काम नहीं कर रहा है आपका, वो आपको दैट्स अ वर्क फ्लो. आप उसमें डिफाइन कर दो वर्क फ्लो, देन इट विल वर्क फॉर यू. LangGraph इज लाइक दैट. सो बेसिकली अगर तुमको टू आंसर योर क्वेश्चन, someone has to start and they are at this level, उनको LangChain वगैरह के बारे में पता है, so make a PDF extractor, website extractor, all those things and create a chat based prompt out of that. Do this project. This is a very this is like a MNIST data set. MNIST data set. Second, if you want to learn the agentic workflows, go for N8N या फिर LangGraph के अंदर तुम जा सकती हो. और उसके अंदर जाके आप सबसे पहले ये जो एक्सेल वगैरह को कैसे कनेक्ट करना है एआई टूल्स के साथ, और फिर उसमें क्या वर्कफ्लोज डिफाइन करना है और कहाँ पे क्या चीजें होने वाली. So these are the two things. Okay. So this is the clear cut answer to your question. Okay, so you should dive into that, and एक बार आ जाएगा then you'll get clarity after building some projects की. But again, you have to come a long way. बहुत पीछे से आना पड़ता है. You have to learn a lot. सीखते जाओ, जो मिल रहा है सीखो, जो मिल रहा है पढ़ लो. Learn. That is what I say to everyone. Learn. जितना पढ़ोगे उतना कम है, और जितना कम है उतना ज्यादा पढ़ते रहो. So Amit, what are your thoughts on the future trend with AI? आजकल तो कुछ हमेशा कुछ नया आ रहा है, and then you can see like an overlying AI war we can kind of say with a bunch of companies, Microsoft, OpenAI, Meta. Apple is yet to do too much so far, but I'm expecting it might do something in the coming days. So like what do you think Apple the future trends are? कुछ ना कुछ करेगा. That is the thing with Apple. It comes in and it builds something totally new, and then
everyone moves to Right. that. So what do you think? What do you think the future of AI is? Because a lot of people really worry कि jobs चले जाएंगे, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, I don't know, world खत्म हो जाएगी, AI will become smarter than us, blah blah blah, brain rot हो जाएगा. So what do you think? Like future में, like what are some of your predictions? If you want to give like 2 to 3 predictions that you think might come true, and yeah, that is pretty much it. आपकी जॉब तब तक नहीं जाएगी if you are an AI user, if you know how to use AI. 98% of the people in the world doesn't know how to use Google, how to Hmm. search on Google, what to search on Google. So if you are an AI user, if you use AI, your job won't go anywhere. Even if you're a digital marketer, even if Hmm. you are a finance guy, even if you are a business person, even if Hmm. you are a management person, even if you are a HR, if you use AI, you won't go anywhere. Keep a better communication skill. Keep your attitude low. Don't have ego. Speak politely to people. These are the things. This is your question कि जॉब तो कहीं नहीं जाने Hmm. वाली. Hmm. अगर आप AI यूज करते हो आपकी जॉब कहीं Hmm. आपको समझ अगर है अपनी चीजों की तो जॉब कहीं नहीं जा रही. Hmm. सेकंड, पहले क्या था जनरेटिव AI by 2024. Hmm. 2025 is the year of agentic AI. And you know what? 2026 and 2027 and up to 2030 will be completely all over by AI. हर एक टूल कनेक्ट होके आएगा AI के थ्रू. Hmm. अभी तुम अगर देखो ना, I guess iPhone 17 is on the way and it will be launched in August only, Hmm. mid-August maybe. And they are using AI in their camera or something like that. Hmm. वहां पे आ चुके हैं हम लोग. Bionic eye. There's a concept of bionic eye. Hmm. It came into the picture. There's a concept of BitChat. You might not know that, but anyway, Big उसमें chat I जाते haven't भी heard. नहीं. So, BitChat is a Jack Dorsey, ex-Twitter founder. अच्छा, Bit chat. Okay, So I've heard of उन्होंने Bit chat. बनाया I've heard of Bit. BitChat. हाँ, Bit No, no, chat. no. You might not have heard. Let's don't हाँ. dive into that. हाँ. So this was one thing. हाँ. Prediction. I'm not one to predict, but फिर भी on a software side, it will be all over by agentic AI. Hmm. आप लोग के पास कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जाने वाला है. आप बस बोलोगे यार मेरे को ये करके दे दे, वो करके दे देगा. मेरी यहाँ की दिल्ली की सबसे सस्ती जो फ्लाइट है वो बुक करके दे दे. आपसे Hmm. 4 चीजें पूछेगा जरूर, बट थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन दैट साइड. अगेन आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली इफ यू आर गुड एट इट. if you use AI, if you Hmm. are a fast working guy, अगर तुम में वो चीजें हैं जो बाकी में नहीं है, कहीं नहीं जाने वाली है जॉब. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स. Hmm. अभी तक होता क्या था, रोबोटिक्स के केस में हम लोग को लगता है कि यार कंट्रोल्स उतने बेहतर नहीं हो पाएंगे Hmm. एआई के बेसिस पे, क्योंकि एआई उतना अच्छा नहीं था आज से 5 साल पहले. हाँ, correct. अभी एआई और बेहतर होता चला जा रहा है और हमको लगेगा यार कंट्रोल्स तो और बेहतर होते चले जा रहे हैं, तो चीजें रोबोटिक्स की साइड जानी स्टार्ट हो जाएंगी. तो robots are coming. So ultimately, that is one of my prediction. Robots are coming. Robots are coming into the future. And I And think MIT के भी बहुत अच्छे robots है. If you have seen their कोई तो I right, think they have this right, club or something, like it is good with gymnastics, I guess. And you were right. saying something else. And one more thing. Yeah, I was saying Hmm. something. People should understand this thing. जो वो ChatGPT से कर रहे हैं ना, वो उनको तो एटलीस्ट पता हो. Hmm. चीटिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए. ठीक है. आई वॉज नेवर अ फैन कि हाँ मेरा कोई दोस्त मुझसे चीट करके जा रहा है और Hmm. उसको उसका पेपर कैंसिल कर दो. मत करो. उससे पूछ लो, अगर उसको वो पता है तो उसका पेपर कैंसिल मत करो. Hmm. अगर तुमको पता है तुम ChatGPT यूज करो, यूज AI टूल्स. अभी ये भी सीनैरियो आएगा कि हमारे ब्रेन कमजोर होते चले जाएंगे क्योंकि हम उतना मेहनत नहीं करेंगे. Hmm. यूज ChatGPT बट तुमको पता हो कि वो क्या होगा. I think MIT का ही research paper आया on that. They did some research राइट. with सो writing. Hmm. राइट. सो बी अ रिसर्चर. ट्राई टू बी. मैं अगर अभी चाहूँ तो मैं अपनी IIT हो चुकी है. आई एम अर्निंग ओके Hmm. एंड मैं अभी काम कर रहा हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स, बट Hmm. एट द एंड ऑफ द डे वी नीड समथिंग लाइक दैट कि हाँ आपका रिसर्च ब्रेन रहना चाहिए ताकि दिमाग चलता रहे. Hmm. So yeah, this was the answer to your question. Okay. So thank you so much, Amit, for sparing some time on my podcast. Is there some final life lesson or anything else you want to say, motivational point or anything?
anything that you have from your side, like on a human note, maybe that can help people out. On a human note, I would say if your intent is clear, मेरे लिए सिर्फ इंटेंट मैटर करता है. If what हाँ. I'm doing, what I'm working on, if I'm okay with that, अगर at the end of the day, it should not be like कि I didn't work enough, मैंने काम नहीं किया, मेरी गलती रही. खुद को मैं ये ना बोलूं, intent should be very clear. Intent का ही गेम है सारा का सारा. Every game is of intent. If your intent is clear and you have worked enough on it, you are good to go. So this is be humble and तुमको नहीं आता है ये हमेशा सोच के चलो. I think that is what is किसी से भी कुछ भी written in समझो. the Gita as well, ना कि like God is saying that nothing is Right. in your control. हम लोग को कभी-कभी लगता है कि भाई हम ये सब कंट्रोल कर रहे हैं, like हम इतने अच्छे हैं, इसके लिए जॉब लग गया, ये हो गया, वो हो गया. But like Amit mentioned throughout the podcast, he had mentioned that कि भाई humble रहो, तुमसे भी फाड़ू लोग तो है. तो and anyways life is not a race, तो मतलब हमेशा कोई ना तुमसे कोई फाड़ू फाड़ू लोग तो मिलेंगे. रहेगा ही. तो वैसा नहीं है कि you can never reach the top. मतलब I Right. personally don't believe top तो क्या है, मतलब I don't think there's not There's something no as top. the There's top. actually we are not talking about the top. We are talking about the depth. हाँ, depth, correct, There's no end to depth. कहाँ तक जाओगे कुछ नहीं पता. correct. जितना घुसोगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा और उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा. वो तो है ही. So that's these are the things. Okay, so thank you so much, Amit, once again. It was great Okay, talking thank to you. you.